Assalamu alaikum everyone, and I hope you are doing well. My name is Noor Fatima and I am a software engineering student. Before we start, let me quickly tell you about ETL Online. ETL is a great platform that brings together different technologies for learning and collaboration. It offers hands-on experience with open source projects, help you build your career profile, and prepare you for interview. ETL also connects you with industry's professionals. ETL has some cool tech initiative like blockchain, full stack programming, IoT, and AI ML. They organize boot camps, workshops, and hands-on sessions to help you gain real-world skills, so do check it out. Now let's move on to today's main event. We are very lucky to have Sir Shakeel with us. He's an experienced tech leader with over 25 years of experience working at top companies like Citigroup, Hewlett-Packard, and AT&T. Today, he will be sharing his knowledge about agile methodologies and how to use them to build high-quality software. Okay, thank you, Nur Fatma. So let's start. Bismillah, Allahumma salli Muhammad, barik salim alayhi. So बहुत शुक्रिया सबके join करने का. I hope कि inshallah it will be a very interesting, very exciting session today. We will be discussing about agile methodologies. मैं आपके साथ कुछ examples भी share करूँगा ताकि हम लोग theory को ज़रा practice में देखें कि theory तो ठीक है हमें समझ आ रही है कि agile होता है, scrum होता है, कुछ उसकी ceremonies होती हैं. तो actual word में how you can implement. Nur Fatma, can you please make sure that nobody has a screen control? I see somebody scribbling. Okay, so with that, let's get into the actual content. तो हो क्या रहा है? टेक्नोलॉजी, हम कहते हैं हम टेक्नोलॉजिस्ट हैं और हम लोग काम करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर पे, हम सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं. तो सिचुएशन है क्या, रियलिटी है क्या? So the way we want to do is basically we want to understand कि टेक्नोलॉजी का रोल क्या है. Nur Fatma Varda, can you please help with the administration of I see some scribblings happening. तो businesses क्या कर रहे हैं? Businesses जो हैं वो they want to generate value, they want to take care of their customers. तो technology is an enabler for the business. Technology ने क्या करना है? Technologists ने क्या करना है कि हम लोगों ने make sure करना है कि जो business के objectives हैं वो हम किसी तरह उनको meet करने में help कर सकें, उनको enable कर सकें, जो भी उनके business objectives हैं. उसमें performance improvement हो सकती है, उसमें efficiency हो सकती है, उसमें automation हो सकती है, process की या workflows की, गो टू मार्केट की जो है स्पीड तेज कर सकते हैं, हम उनको एजाइल बना सकते हैं, उनको हम निम्बल बना सकते हैं. तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट टेक्नोलॉजी कैन डू एंड आवर रोल, जो हम टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से जाएंगे मार्केट में या मार्केट में हैं, हम बिजनेसेस के साथ मिलके उनको एनेबल करेंगे कि उनके ऑब्जेक्टिव्स हम मीट कर सके. अनलेस कि हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे नवीडिया है, माइक्रोसॉफ्ट है, दैट इज by itself a business, technology as a business. But here I'm talking about businesses that are not technology for the most part. And that's the fact of the matter कि बहुत सारे businesses, banks हो गए, different utility companies हो गई, जैसे गैस की है या इलेक्ट्रिसिटी की है या डिफरेंट तरह की कंपनीज हैं. तो उन कंपनीज को हमने एनेबल करना है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे तरीके से मीट कर सके. अच्छा, एजिलिटी क्या है? एजिलिटी ये है कि जो कस्टमर को वैल्यू प्रोड्यूस करनी है, जो डिलीवर करनी है कंपनीज ने, जो बिजनेसेस ने, हम उनको फैसिलिटेट कर सकें, हम उनको उस वैल्यू डिलीवरी को हम एनेबल कर सकें. और while we are doing that, we have to also take care of जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, जो डायनामिज्म है और जो चैलेंजेस हैं, हम उनको फेस करते हुए, और जो चेंजेस हो रही हैं मार्केट में, आपको पता है कि बहुत स्पीड से टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है, बहुत सारा कंपटीशन है मार्केट में, लोकली इन पाकिस्तान और ग्लोबली एवरीवेयर. तो अब इन चैलेंजेस को सामने रखते हुए और जो चेंजेस बड़ी फास्ट पेस पे करनी है कंपनीज ने, बिजनेसेस ने, हम जो एजिलिस्ट हैं, हम जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, हम उनको हेल्प कर सकें
कि इन ऑल दी सर्कमस्टांसेस वो वैल्यू जनरेट कर सकें। हमारा जो काम है वो इतना फास्ट हो, इतना निम्बल हो, इतना अच्छा हो कि वो वैल्यू प्रोड्यूस हम कर रहे हो और अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ द बिजनेसेस फॉर देयर कस्टमर्स, राइट। अच्छा, अब पहले क्या होता था, जो प्रोजेक्ट्स होते थे टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स, उनमें एक इसको कहते हैं आयरन ट्रायंगल, स्कोप, टाइम और कॉस्ट। तो उसमें आइडिया ये होता था कि कभी आप जो है ना, अगर स्कोप चेंज हुआ तो उसकी वजह से टाइम चेंज हो रहा है, या कॉस्ट चेंज हो रहा है, या कॉस्ट चेंज हुई है तो उसकी वजह से टाइम, और यानी दीज थ्री पैरामीटर्स दे हैव इम्पैक्ट ऑन ईच अदर। तो इसको आयरन ट्रायंगल कहते हैं। कुछ भी चेंज हो, अगले दो जो हैं, जो दूसरे जो दो पैरामीटर्स हैं, दे आल्सो चेंज। अच्छा, जो एजाइल प्रोजेक्ट है उनमें इस चीज को देखने के लिए थोड़ा सा चेंज कर दिया व्यू, कि हम गिवन द STC, स्कोप, टाइम और खास जो कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको सामने रखते हुए, उनको मैनेज करते हुए हमने वैल्यू डिलीवर करनी है, और वो अच्छी क्वालिटी की हो। अब अगर वो वैल्यू जो है उस पे कोई इम्पैक्ट होगा या क्वालिटी पे जो इम्पैक्ट होगा, तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू मैनेज इन एजाइल, कि वी डोंट वांट दैट इम्पैक्ट, राइट। वी वांट टू मैनेज द कॉन्स्टेंट्स, स्कोप और टाइम और कॉस्ट को इस तरह कि वो जो वैल्यू है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहे, और विद हाई क्वालिटी, कि हम अच्छी क्वालिटी के साथ वैल्यू डिलीवर कर सकें, कि कोई प्रोसेस जो है जो इम्पोर्टेंट है उसको ऑटोमेट कर दिया, जो वर्क फ्लो है उसको ऑटोमेट कर दिया, और उसकी जो स्पीड है, उसकी जो डिलीवरी मार्केट टाइम टू मार्केट है, वो उसको हमने शॉर्ट कर दिया। सो दीज आर द गोल्स दैट एजाइल प्रोजेक्ट्स विल हैव। अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए एज एजाइलिस्ट, कि हम जो एजाइल टीम्स में हैं, जो टेक्नोलॉजी की साइड से हैं, कि वी आर डिलीवरिंग क्वालिटी, we are delivering value with quality while taking care of the constraints of scope, time and cost. So that is the important thing that we need to keep in mind, कि हम टेक्नोलॉजी को enablement के तौर पे देख रहे हैं, बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं, बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, और बिजनेस को जो भी कंपनी है या जिस बिजनेस के लिए हम काम कर रहे हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए, उनका वैल्यू प्रपोजिशन को डिलीवर करने के लिए विद क्वालिटी, दैट इज व्हाट वी ट्राइंग टू डू। ठीक है जी। अच्छा, बहुत सारी मेथोडोलॉजीज हैं, स्क्रम, कैनबैन, सेफ, देयर आर बंच ऑफ देम, राइट। इस वक्त जो दुनिया में ज्यादातर यूज हो रही है वो स्क्रम है, और बहुत सारी एंटरप्राइजेस में अब सेफ यूज हो रही है और कैनबैन यूज हो रही है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और ये बाकी जो है FTD, DSDM वगैरह, इनकी जो अच्छी चीजें थी वो स्क्रम, कैनबैन और सेफ में मोस्टली लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो हम आज थोड़ा सा फोकस करेंगे स्क्रम और कैनबैन पे। ठीक है जी। लेट मी टेक अ पास। नूर फातिमा, एनी क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स? No, sir, there is no question. ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स इन जूम, और नूर फातिमा मुझे इंटरवीन करके मुझे पूछ पूछ सकती हैं क्वेश्चन, एंड इंशाल्लाह आई विल आंसर दोस क्वेश्चन। अच्छा जी, अब मजे की बात यह है कि थ्योरी जो है वो अगर किसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझी जाए तो वो ज्यादा आसान हो जाती है। तो what I'll do is I will take you to a project जो और मैंने कुछ चीजें थोड़ी for the sake of privacy I have changed the names and everything और numbers just to give you an idea कि जब हम प्रोजेक्ट करते हैं एजाइल मेथोडोलॉजी को यूज करके तो वो होता कैसे है। ठीक है जी। तो एक प्रोजेक्ट था रिसेंटली, आई थिंक 2 or 3 years ago, मेरी कंपनी ने वो प्रोजेक्ट किया। तो हम लोगों ने जो इंटीग्रेशंस होती हैं, तो क्या होता है कि इस कंपनी ने, इनके पास क्लाइंट थे और इनके क्लाइंट्स जो हैं वो डेटा भेज रहे हैं इस कंपनी को, और वो डेटा जो है वो इनके इंटरनल सिस्टम्स के साथ
दो मेन सिस्टम से, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम और वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन दो सिस्टम्स के साथ वो डेटा इंटीग्रेट हो रहा था। तो इस डेटा को देयर आर लाइक 400 प्लस पार्टनर्स ऑफ दिस कंपनी। तो वो डेटा जो है वो ईडीआई फॉर्मेट में भी आ रहा है, एक्सएमएल फॉर्मेट में भी आ रहा है, जेसन फॉर्मेट में भी आ रहा है, राइट। देयर आर मेनी डिफरेंट फॉर्मेट्स और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के थ्रू आ रहा है। AS2 है, या SFTP के थ्रू भेज रहे हैं, या FTP के थ्रू भेज रहे हैं। देयर आर मल्टीपल डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। EDI is another protocol, right? So they are using those protocols to send the data in different formats. तो हमारा प्रोजेक्ट ये था कि वो सारा सिस्टम डेवलप हुआ था एक लेगेसी प्लेटफॉर्म पे, और वो लेगेसी प्लेटफॉर्म पे हमने एक मॉडर्न इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो है, आईपैस एक नया कॉन्सेप्ट है। आई वुड एनकरेज ऑल ऑफ यू टू लुक अप कि आईपैस क्या होता है और कौन से मशहूर फेमस आईपैस हैं। फॉर एग्जांपल बूमी है, म्यूलसॉफ्ट है, वर्काडो है। दैट्स अनदर $25+ billion इंडस्ट्री। और आप लोगों को जो स्पेशली जो यंग ग्रेजुएट्स या रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं, if you want to explore career opportunity, look for these iPaaS area as well, or look for RPA. This is another area, robotic process automation. Isme bhi that's estimated to be around $29 billion industry in coming years. So lot of work, lot of organizations are moving to iPaaS, these modern integration platforms as a service systems or platforms, and RPA. So please look for those career opportunities. अच्छा, तो हम वापस आते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने लगा हूँ। तो उसकी कुछ चीजें हैं, कैसे वो हुआ, किस तरह हमने किया, उसको मैं I'll walk you through। तो क्या होता है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, यूजुअली 1.5 साल का, 2 साल के, ये मैं बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जिसमें मल्टीपल टीम्स होती हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। तो अब आपके पास काफ़ी सारे फीचर्स हैं, उसको कुछ एपिक्स कहते हैं इन एजाइल टर्मिनोलॉजी, कोई उनको थीम्स कहते हैं। देयर आर डिफरेंट नेम्स, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर आर डिफरेंट फीचर्स दैट कंपनी वांट्स टू ऑटोमेट। तो क्या करते हैं आप कि आप एजाइल प्लानिंग में उनको एक उसकी साइजिंग करते हैं कि ये इसका एस्टिमेट करें हाई लेवल पे एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कि कितना बड़ा काम है। फिर उस साइजिंग से आप जो है वो ड्यूरेशन निकालते हैं, एक हाई लेवल टाइमलाइन निकालते हैं, और उससे फिर आप एक स्केड्यूल जो है वो पब्लिश करते हैं। तो अब ये एक बिग पिक्चर है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके जाता हूँ कि एक एजाइल जो प्रोजेक्ट पे लोग जो काम कर रहे हैं, जो टीम है, वो करती कैसे इसको। तो लेट मी रीशेयर माय स्क्रीन एंड लेट मी टेक यू टू सम डॉक्यूमेंट्स। नूर फातिमा, एवरीथिंग इज गुड सो फार? कोई क्वेश्चन किसी का? No, sir, there is no question. अच्छा जी। अच्छा, अब as I said कि for the privacy I have changed lot of things just to show you some an idea कि होता कैसे है। तो हमारे पास बहुत सारे एपिक्स थे, और ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। ये ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम था, ये फुटप्रिंट, ये एक वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम था। तो ये हमारे पास एपिक्स थे। तो हमने क्या किया कि मैंने अपनी टीम को कहा कि मुझे ना इसको थोड़ा सा मुझे आइडिया दो कि ये कितना बड़ा काम होगा। तो वी वर्क फॉर फर्स्ट टू स्प्रिंट्स आई वुड से। हमने डीप एनालिसिस किया। हमने कहा कि ये इनबाउंड ट्रांजैक्शंस कितनी आ रही हैं, आउटबाउंड कितनी हैं, कितनी ऑलरेडी हो चुकी हैं, और कितनी जो है वो हमने डेवलप करनी है, और उनमें से सिंपल, मीडियम और कॉम्प्लेक्स कितने हैं, और उनका मुझे बताएं कि जो है वो स्टोरी पॉइंट्स कितने होंगे। ठीक है जी। अब स्टोरी पॉइंट्स क्या है? स्टोरी पॉइंट्स आर्बिट्ररी नंबर होता है इसमें एजाइल मेथोडोलॉजीज में। लेकिन जब प्रोजेक्ट शुरू होते हैं तो उससे पहले उसको डिफाइन कर लिया जाता है। जो एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजर है या स्क्रम मास्टर है, वो कहता है कि अच्छा जी, एक स्टोरी पॉइंट का मतलब है कि रफली 1 डे वर्थ ऑफ वर्क। ठीक है जी। या वो कह सकता है कि एक स्टोरी पॉइंट जो है वो हाफ डे वर्थ ऑफ वर्क है। तो जो भी आपने मैपिंग बनानी है, जो भी आपने एक स्टोरी पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग बतानी है, वो आप यू डॉक्यूमेंट दैट एंड यू शेयर विद द टीम एट द वेरी बिगिनिंग टू मेक श्योर कि जो भी स्टोरी, क्योंकि स्टोरी पॉइंट इज अ वेरी वेरी
key thing in agile projects, in scrum projects for example, आप उसको यूज करके साइजिंग कर रहे हैं, और साइजिंग बहुत अहम चीज है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि शुरू में जब आप प्रोजेक्ट शुरू होता है तो आपके पास जो जो आपकी सीनियर लीडरशिप होती है वो कहती है कि ये प्रोजेक्ट जो है, जरा मुझे आइडिया दो कि ये कितना टाइम लेगा, ये कितने पैसे लेगा, कितने लोग चाहिए होंगे, राइट। तो आपको साइजिंग आप करेंगे तो आप बता सकेंगे सीनियर लीडरशिप को कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने पैसे लगेंगे और इतना टाइम लगेगा, इतने लोग लगेंगे। तो that you give this high level information to them and then they either approve or reject. So that exercise of estimation is a really really important exercise, क्योंकि उसकी बेस पे और वो कितनी अच्छे तरीके से होती है, वो उसकी बेस पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा, राइट। तो इस वजह से स्पेशली अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और उस क्लाइंट से आपको रेवेन्यू मिल रहा है, तो यू डू योर बेस्ट टू मेक श्योर कि आप बहुत उसको ज़्यादा पैसे एस्टिमेट नहीं करते हैं, यू डोंट overdo the estimation of cost or timeline, or you don't underbid as well, you don't go under as well, right? So you have to be right size with the estimation. So that's why I'm saying with the example I'm giving you an idea कि बड़े projects की estimation के लिए there are different techniques. This one of the techniques that I'm sharing. और ये sizing का मैंने क्या किया कि मैंने उनको एक दे दिया, क्राइटेरिया दे दिया कि सिंपल जो होगा वो उसके 10 स्टोरी पॉइंट्स होंगे, और एक स्टोरी पॉइंट इज रफली 1 day वर्थ ऑफ वर्क। अच्छा, स्क्रम मेथोडोलॉजी में या एजाइल मेथोडोलॉजी में जनरली एक स्प्रिंट जो होती है, स्प्रिंट क्या है, स्प्रिंट है कि हम तेज से भागेंगे, ठीक है, ये एक स्प्रिंट का कॉन्सेप्ट है। तो जो टेक्नोलॉजी की टीम्स हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने लगी हैं, बिजनेस को एनेबल करने लगी हैं, बिजनेस के जो कंपनी के जो कस्टमर्स हैं उनको वैल्यू प्रोवाइड करने लगी, उन्होंने भागना है और इकट्ठे भागना है। और after one sprint, after the end of, usually one sprint is like 2 weeks, right? कुछ लोग 3 weeks भी कर सकते हैं, 4 weeks भी कर सकते हैं, there are different ways people do that, लेकिन 2 weeks is pretty standard now, I think in lot of places. तो 2 weeks के अंदर अब आपने स्प्रिंट लगानी है, सारी टीम ने मिलके काम करना है, ये कोलैबोरेटिव वर्क है, ये कम्युनिकेशन है, कांस्टेंट एंगेजमेंट है। ये मैं आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जो आपने थ्योरी सुनी होगी, मैं आपको एक्चुअली इस प्रोजेक्ट की एग्जांपल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत सारी डिस्कशंस हो रही हैं, कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ नेसेसरी थिंग की हो रही है कि ओनली दोज थिंग्स व्हिच आर रियली नेसेसरी वो उस स्प्रिंट में होंगी। अच्छा, इसकी डिटेल में थोड़ी देर बाद मैं मजीद इसकी डिटेल में जाता हूँ। तो हम प्लानिंग पे वापस आते हैं। तो मैंने उनको एक क्राइटेरिया दे दिया कि भाई सिंपल जो होगी वो एक स्प्रिंट उसको चाहिए होगा, मीडियम जो है 1.5 स्प्रिंट्स रफली, और जो है कॉम्प्लेक्स जो है प्रोसेस जिसको हमने वो करना है, ऑटोमेट करना है, मूव करना है, माइग्रेट करना है फ्रॉम लेगेसी प्लेटफॉर्म टू द न्यू हाईपास प्लेटफॉर्म, तो उसमें हमें रफली 24 दिन चाहिए होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन सब स्टोरीज को उन्होंने साइज किया कि भाई हमें इसके लिए इतने स्टोरी पॉइंट्स चाहिए, इसके लिए इतने चाहिए, and they spent good amount of time. Again, these are high level estimates, right? You cannot spend like n number of hours. You have to have certain time box for estimation. आप कहते हैं कि इतनी देर में within like let's say 2 sprints, we want to get the estimates done. While some places, कुछ companies क्या करती हैं, वो काम शुरू कर देती हैं और big project का जो है ना एस्टिमेशन वो साथ साथ थोड़ा शुरू हो जाता है। तो 1 2 3 स्प्रिंट से चलाने से उनको ये भी आइडिया हो जाता है कि टीम की कैपेसिटी कैसी है, प्रोडक्टिविटी कैसी है, इसको वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी क्या होती है कि किस स्पीड से काम कर रहा है, किस स्पीड से टीम रन कर रही है, राइट। स्प्रिंट का अगेन रन 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 रन, राइट। तो वेलोसिटी क्या होती है, एक आपको आइडिया देती है कि कितनी स्पीड से टीम रन करेगी। अच्छा, अब वो मैंने क्या किया कि वो जब मैंने उनसे इंफॉर्मेशन ली तो हमने कहा कि अच्छा जी, जो प्रायोरिटाइज एपिक हैं वो हैं टीएमएफ और टीपी के टीयर 1 के, राइट, फुटप्रिंट के और टीएमएफ के 34 जो थे वो ट्रेडिंग पार्टनर्स थे जिनको हमने पहले मूव करना था। उनके 151 भूमि प्रोसेसेस थे। उनमें से मेरी टीम ने कहा जी कि 100 जो हैं वो सिंपल है, 41 जो है मीडियम है, 10 जो है कॉम्प्लेक्स है। तो रफली टोटल स्टोरी पॉइंट्स आ रहे थे 1210। अच्छा, अब जो स्टोरी पॉइंट पर डेवलपर पर स्प्रिंट है, जैसे मैंने बताया कि एक स्प्रिंट जो है वो 2 हफ्ते की होती है, विच मीन्स 10 वर्किंग डेज, बिजनेस डेज, राइट। तो अब मेरे पास डेवलपर थे इस प्रोजेक्ट के लिए
माइग्रेशन प्रोजेक्ट के 5 थे, राइट। तो उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी कैपेसिटी क्या है? उनकी कैपेसिटी है 50, यानी कि 10 जो है एक बंदा कर सकता है और 5 जो हैं डेवलपर्स हैं। तो इसका मतलब कि मिल के पूरी टीम 50 स्टोरी पॉइंट्स वो डिलीवर करनी चाहिए उनको इन अ गिवन स्प्रिंट। अच्छा, इसकी बेस पे कि ये टोटल स्टोरी पॉइंट्स इतने आए, तो इसका मतलब है कि मुझे 25 स्प्रिंट इन 5 लोगों के साथ चाहिए टू डिलीवर द वर्क फॉर टीयर 1। अच्छा, ये अभी टीयर 1 है, अभी टीयर 2 टीयर 3 वो भी यानी कि तकरीबन 3 साल का प्रोजेक्ट है ये, विद 5। वो उनके पास बजट का मसला था, उन्होंने कहा जी हम बस 5 ही लोग रख सकते हैं, वी नो इट विल टेक टाइम एंड वी आर ओके विद द टाइम। तो ये सारी डिस्कशन जो हैं ये साथ साथ होती नहीं, मैं उनकी आपको समरी बता रहा हूँ। तो फिर मैंने मंथ्स पे इसको, यानी ये जो 25 है इसको 2 पे डिवाइड करें, यानी 2 वीक्स हैं, राइट, एक स्प्रिंट के, तो महीने में 2 स्प्रिंट्स हैं, तो इट मींस कि 1 साल के अंदर टीयर 1 का काम कंप्लीट होगा। तो इस तरह हमने एस्टिमेट किया, स्टोरी पॉइंट्स को यूज किया, टीम की कैपेसिटी को स्टोरी पॉइंट्स में लिख के फिर हमने कहा जी कि इसको 1 साल लगेगा। और इसकी अब ये रफ नंबर हैं, दीज आर नॉट द रियल नंबर्स बाय द वे। तो मैंने तो कहा सॉरी जनाब, फॉर इंटरप्टिंग, पर कुछ क्वेश्चंस आए हैं, अगर आप जी जवाब दे। एक सेकंड मैं इसको कंप्लीट कर लूं, देन नूर फातिमा कैन वी गो टू द क्वेश्चंस। या श्योर सर। जी, अच्छा, इस पे फिर हमने कहा कि जी एक डेवलपर जो है उसकी लेट्स से एक्स नंबर ऑफ डॉलर्स उसकी कास्ट है, तो पूरे प्रोजेक्ट की किट कास्ट ये होगी। और फिर हमने विद आई वर्क विद द टीम एंड आई सेड कि हमारा रिलीज प्लान क्या होगा इस स्प्रिंट में। हम ये इतने जो है ना ट्रेडिंग पार्टनर्स हम माइग्रेट कर चुके होंगे, अगली स्प्रिंट में ये उससे ये, इट वाज अ वेरी डिटेल्ड प्लान जो हमने लीडरशिप के साथ शेयर किया, अप्रूवल ली और फिर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया। सो लेट मी टेक अ पास हेयर। जी नूर फातिमा, आप क्वेश्चन शुरू करें। Sure, sir. So the first question is from Alishba Noor. Assalamu alaikum. I have a question. What are some common mistakes to avoid when implementing Agile? ओह, ये तो बड़ा जेनेरिक क्वेश्चन है, ये आज की सारी जो टॉक है वो इसके आंसर होगा। बस नेक्स्ट क्वेश्चन। From Aram, is sprint is same for every project? अच्छा, जब आप ये स्टोरी पॉइंट की डेफिनेशन आप कर लें कि अच्छा जी 1 स्टोरी पॉइंट मींस हाफ अ डे और 1 स्टोरी पॉइंट मींस 1 डे वर्थ ऑफ वर्क, तो फिर यू सेट इट, यू फिक्स इट फॉर द होल प्रोजेक्ट और उसको आप चेंज नहीं करें। जनरली अगेन डिफरेंट प्रेफरेंसेस होते हैं। कुछ जो है एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजर्स, उसको 1 स्टोरी पॉइंट इज लाइक 1 डे वर्थ ऑफ वर्क, और कुछ जगहों पे मैंने देखा है 1 स्टोरी पॉइंट इज हाफ डे वर्थ ऑफ वर्क, राइट। तो लेकिन जो भी, और 2 वीक्स की 10 डेज की एक स्प्रिंट है, तो जो चीज आप फिक्स करते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए इट शुड रिमेन फिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। From Iman BB. Sir, how does Agile flexibility in accepting changes impact project quality and how developers manage it? जबरदस्त जबरदस्त, ये बस इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है, ये मेरी अगली स्लाइड में यही था जी। नेक्स्ट। Okay, next question is with Ramisa Binte Khalid. How do you measure the success of an Agile project beyond just delivering on time within budget? एक्सीलेंट क्वेश्चन, ये भी मेरी अगली स्लाइड्स में आंसर हो जाएगा। From Alisha Rahman. Sir, as you told that cost and time comes in size estimation, but there is also a separate phase for time duration. सेपरेट फेज फॉर टाइम ड्यूरेशन, उसका क्या मतलब है? मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन, आई थिंक मैं जब फर्दर स्लाइड्स में जाऊंगा तो शी विल होपफुली बी क्लियर विद दैट कॉन्सेप्ट। The next question is from Fiza Saif. Is Agile really work for mostly every type of project? Have you faced any type of implementation of Agile in your whole experience? Every type of project, that's actually a very interesting question. That's actually debate among the academicians and the industry practitioners कि क्या वाकई agile use होना चाहिए हर जगह पे। So I would refrain from giving my opinion on that. कुछ projects पे शायद agile is not the right answer, और वो प्रोजेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल यू यू मे नॉट बी एबल टू डू, और मैं उसकी एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे पास 125 प्लस इंजीनियर्स थे,
or we had been doing the most advanced machine learning AI kind of work. तो उसमें जो machine learning related work था वो mostly research based था. तो agile wasn't the right thing for them, so I actually changed them to something else. I made it more like Kanban. Good question. Next. Okay, the next question is from Sayed Wakas. And what are tires? How many tires should be estimated in a single project? What the usual No. So that tiers, that the word terminology tier I'm using, that was a customer specific terminology. So tier is essentially उनके अपने customers को tier 1 थे, को tier 2 थे, को tier 3 थे. I mean that was just their own categorization of the customers. So in other places you may not have tiers or categories. Okay. जी. Next question from Laiba Sabir. How do you ensure that all team members, including those new to Agile, stay aligned with Agile values and processes? तो ये जनाब, ये तो ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि जिसमें पूरी टीम ने मिलके काम करना है, राइट? तो स्क्रम मास्टर का रोल काइंड ऑफ ये है कि टू मेक श्योर कि वो मोटिवेट रखे, वो एंगेज रखे, वो कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करवाता रहे पूरी टीम को कि एजाइल की प्रिंसिपल्स, एजाइल की इवेंचुअल गोल. और वो जो गोल मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि वी शुड बी एबल टू be flexible enough to respond to the changes, right? जो मार्केट में चेंजेस हो रही हैं, जो बड़ी स्पीड से चीज़ें मूव हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, ग्रो हो रही हैं, राइट? तो मैं एज अ टेक्नोलॉजिस्ट जब मैं अपनी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ तो आई शुड बी मेकिंग श्योर कि माई कंपनी कैन रिस्पॉन्ड टू दोज चेंजेस, दोज मार्केट डिमांड्स एंड दोज गो टू मार्केट स्ट्रेटजीज. तो जितनी स्पीड से मैं पिवट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ. मी मीन्स लाइक लेट्स से आई एम टेक्नोलॉजी लीडर और टेक्नोलॉजी टीम मेंबर. तो जितना ज़्यादा मैं बिजनेस को इनेबल कर सकूंगा टू रिस्पॉन्ड टू द मार्केट डिमांड्स, उतना ही मेरी कंपनी ग्रो करेगी, उतना ही मुझे भी फायदा होगा, राइट? आई विल ग्रो एज वेल. इट्स अ विन विन थिंग, राइट? तो एजिलिस्ट जो होते हैं दे हैव दैट माइंडसेट कि दे वांट टू बी फ्लेक्सिबल, but their main goal is value with quality. कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो eventually should be helping the business to add value to their customers. So we must always be aligned with the goals of the business to constantly produce value with quality. अच्छा, हम थोड़ा सा यहाँ पास करते हैं नूर फातिमा, मेरे पास कंटेंट काफी है, तो फिर हम वापस क्वेश्चंस पे आते हैं. सर ओके? Sure, sir. You can चलिए carry जी, हम on. वापस जाते हैं. लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन. अच्छा जी, हम लोग कहाँ पे थे? अच्छा, हम लोग मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है. अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि वेट, ओके जी, हम यहाँ पे थे. हमने बात की कि हमारे पास एपिक्स थे, उनमें स्टोरीज थी. स्टोरीज को हमने साइज किया. एक साइजिंग का हमने टेम्पलेट या क्राइटेरिया बनाया. फिर हमने वो उनको सब स्टोरीज को, एपिक्स को साइज किया, और हमने एक टाइमलाइन फोरकास्ट की. और फिर हमने रिलीज प्लान बनाया, कास्ट एस्टिमेट किया. और हमने ये अब ये बहुत सारी चीज़ें, ये एक्चुअली वेरी वेरी डिटेल डॉक्यूमेंट्स, मैं आपको एक समरी व्यू दिखा रहा हूँ जस्ट टू मेक अ पॉइंट. और क्लाइंट से हमने, क्लाइंट की लीडरशिप से हमने अप्रूवल ली. अच्छा, अप्रूवल लेने के बाद फिर हमने एक विजुअल बनाया. अब एक्चुअली देयर वर लाइक मल्टीपल थिंग्स अगेन हेयर, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं आपको, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ. तो एक विजुअल, अच्छा ये विजुअल जो है ना, इसने बड़ा हेल्प किया. ये मैं पहले जीरा में बनाने की कोशिश की, लेकिन जीरा में थोड़े चैलेंजेस थे, तो आई मेड दिस वन विद ब्रूट फोर्स काइंड ऑफ स्प्रेडशीट बेस्ड थिंग, बट दे रियली लव्ड इट. उनको एक पेज पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है पता चल रहा था कि कौन से कुछ कॉलम्स मैंने हाइड किए हुए हैं, कौन से ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हैं वो कब डेवलप हो रहे हैं, कब उनकी यूएटी हो रही है, कब वो प्रोडक्शन पे जा रहे हैं, कब उनकी सपोर्ट हो रही है. So they had a very nice view in one page, in one visual, and they could be able to understand कि टीम कर क्या रही है, राइट? तो ये एक टाइमलाइन व्यू था. ये ऑफ कोर्स इनिशियली पहले प्लान था, फिर एक्चुअल ये जो है वो साथ साथ अपडेट होता रहा. अच्छा, इसके साथ मैंने क्या किया कि मैंने
सबकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो क्या कहते हैं वो कर दी कि भाई जो किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे आप बता सकते हैं कि किसने क्या करना है। तो द गोल वाज टू मेक श्योर कि हमारे जो है जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे हर जो मेन रोल्स हैं उनको क्लैरिटी हो कि उन्होंने क्या करना है, उनका किसका क्या काम है, कौन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, कौन जो है वो ओनर है, किसकी सपोर्ट का काम है। सो ऑल दैट गुड स्टफ वी डिड दैट इन दिस यूजिंग दिस स्प्रेडशीट। अच्छा, एक और मैं चीज दिखाता चलूं, एक सेकेंड। Excuse me, sir, your screen is not हाँ जी। visible. अच्छा, ये रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बना दी, इससे सबको पता चल गया कि किसने क्या करना है, राइट। फिर जो है हमने एक चेकलिस्ट बनाई कि यूएटी पे जाने से पहले क्या होना चाहिए, जीरा में क्या होना चाहिए। तो सम गुड स्टफ, सम गुड बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने डॉक्यूमेंट करके उनको रिव्यू किया, उनको डिस्कस किया, मेक श्योर किया कि सबको समझ आ गई है, उसको ईमेल में भेजा और सबसे थम्स अप लिए कि हाँ मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई, राइट। Again, I'm answering a lot of questions that you guys have, or actually have already probably asked. So I'm answering those questions very quickly to make sure कि आप you understand कि जितना अच्छा आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, किसका क्या रोल है और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किसने क्या करना है, और जो आपकी जो चेक लिस्ट हैं वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि सबको पता हो कि किसने किस तरह काम करना है टीम के ऊपर, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम जो है ये तो होगी एजल प्लानिंग। हमने एक काफी बड़ा सा काम लिया, उसको ब्रेक डाउन किया, एपिक्स को स्टोरीज में, स्टोरीज को साइज किया, साइज से हमने ड्यूरेशन निकाली, उससे फिर टाइमलाइन निकाला, उससे कास्ट एस्टिमेशन लिया, और इन चीजों को हमने क्लाइंट की लीडरशिप से अप्रूवल लेके काम शुरू किया, राइट। अच्छा, अब आप हम आते हैं जरा एजाइल स्क्रम फ्रेमवर्क के डिटेल्स में कि ये जब एग्जीक्यूशन हुई इस प्रोजेक्ट की, तो सो आई विल बी रिलेटिंग दिस कॉन्सेप्ट विद द एक्चुअल प्रोजेक्ट ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए, ठीक है जी। तो अब क्या हो रहा है कि जो प्रोजेक्ट ओनर था वो एक्चुअली मल्टीपल प्रोजेक्ट ओनर्स थे हमारे पास, बेस्ड ऑन किस किस सिस्टम के लिए हम काम कर रहे हैं। एक वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम था, एक ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम था, तो उनके अपने प्रोडक्ट ओनर्स। प्रोडक्ट ओनर जनरली कौन होते हैं, ये नॉन टेक्निकल होते हैं जनरली, और इनको बिजनेस की सही समझ होती है कि कौन सा प्रोसेस कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है, डेटा कहाँ से आना है, कहाँ पे जाना है। सो दे अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रोसेस फ्लो, राइट, एट अ नॉन टेक्निकल लेवल। ये लोग जो हैं, ये प्रोडक्ट ओनर जो है, तो बेसिकली एक चीज मैं बताता चलूँ कि तीन मेन रोल हैं। ये थोड़ा सा मैं यहाँ ये वाली स्लाइड पहले बता दूँ फिर वापस आता हूँ। तो प्रोडक्ट ओनर एक मेन रोल है स्क्रम में, और स्क्रम में इसलिए यूज कर रहा हूँ कि स्क्रम एज आई सेड कि देयर आर मल्टीपल मेथोडोलॉजीज, राइट। स्क्रम है, सेफ है, कैनबन है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन आज हम स्क्रम पे फोकस करेंगे क्योंकि स्क्रम मोस्टली बाय एंड लार्ज इज बीइंग यूज्ड बाय लॉट ऑफ कंपनीज। तो प्रोडक्ट ओनर कौन होता है कि इसका काम है कि करना क्या है टेक्नोलॉजी की टीम ने, मुझे क्या चाहिए। प्रोडक्ट ओनर इज द बॉस इन अ वे कि वो प्रायोरिटी सेट करता है, वो बताता है या वो बताती है कि काम होगा कैसे, ठीक है, और क्यों ये मैं आपसे बनवाना चाहती हूँ। जो प्रोडक्ट ओनर है वो, उसके पास ये क्यों का आंसर होता है, वाई वाई और व्हाट, ठीक है जी। ये दो चीजें प्रोडक्ट ओनर आंसर करता है। स्क्रम मास्टर का काम क्या है, स्क्रम मास्टर जो है या उसके वो एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है। आई मीन दिस इज द रोल, बट देयर आर डिफरेंट टाइटल्स फॉर दिस रोल, राइट, इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, बट जनरली स्क्रम मास्टर इज वेरी एक्सेप्टेबल इन द इंडस्ट्री। वो क्या करता है कि जो स्क्रम की जो एसेंस है, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो स्क्रम मेथोडोलॉजी की जो सारी सेरेमनीज हैं, ये सारा कुछ है, इसका काम है इन साहब का कि टू मेक श्योर के जो प्रोजेक्ट टीम है वो स्क्रम को सही तरीके से यूज कर रही है। और फिर आपकी डेवलपमेंट टीम है जो जिसको पता होता है कि ये होगा कैसे, ये बताती है प्रोडक्ट ओनर कि क्या करना है और क्यों करना है, और डेवलपमेंट टीम को पता होता है कि करना कैसे है और कितनी जल्दी कर सकते हैं हम, राइट। ये कितनी जल्दी कर सकते हैं ये डेवलपमेंट टीम के पास इसलिए होना चाहिए ताकि वो ओनरशिप ले। और जनरली बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि जो भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी पे मैं अगेन आता हूँ, जो स्पीड है टीम की मिलके हर स्प्रिंट में, हर 2 हफ्तों में जो काम डिलीवर करने की जो स्पीड है, जो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, उसको एक अच्छे लेवल पे मेंटेन रखे।
तो जैसे हमने कहा कि जी फॉर एग्जांपल एक स्टोरी पॉइंट इज 1 day, तो एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट एक डेवलपर 10 स्टोरी पॉइंट्स के इक्विवेलेंट काम को डिलीवर करना चाहिए, राइट? अगर वो नहीं कर रहा तो देयर शुड बी क्वेश्चन बाय द अथॉरिटीज कि क्या हो रहा है, क्यों क्यों नहीं हो रहा. स्क्रम मास्टर यूजुअली विल टॉक टू दैट पर्सन एंड will see कि what's going on, how it can be improved and all that good stuff. अच्छा, तो हमने रोल्स की बात कर दी. तो प्रोडक्ट ओनर जो है वो प्रायोरिटाइज लिस्ट बनाता रहता है. तो आज जीरा में जीरा क्या है? जीरा इज अ टूल टू मैनेज योर एजाइल प्रोजेक्ट्स. इसी तरह और भी टूल्स हैं, असाना है, monday.com है, देयर मेनी मेनी टूल्स नाउ. तो इन टूल्स को यूज करके आप जो है प्रोडक्ट बैकलॉग मेंटेन करते हैं. प्रोडक्ट ओनर वो उसको हमेशा कोशिश करता है उसको प्रायोरिटाइज रखे, यानी जो जो अहम काम है वो ऊपर होना चाहिए, टॉप ऑफ द लिस्ट पे होना चाहिए. और वो कहाँ से ये चीज लेके आ रहा होता है? वो अपनी लीडरशिप या बिजनेस के साइड पे जो लीडरशिप होती है, जो टॉप लीडरशिप है, उनसे डायरेक्शन ले रहा होता है या ले रही होती है कि टेक्नोलॉजी की टीम ने, डेवलपमेंट टीम ने बनाना क्या है, राइट? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं. तो जो डेवलपमेंट टीम है उसने प्रोडक्ट ओनर से डायरेक्शन लेके जो टॉप ऑफ द प्रायोरिटी है उसको पिक करना होता है हर स्प्रिंट पे के शुरू में या पिछली स्प्रिंट के आखिरी दिन पे फॉर द नेक्स्ट स्प्रिंट. नूर फातिमा, you have a question? Yes, there are a lot of questions. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम. मिसेस का कैसी हैं? Hope you're doing well, sir. I hope many of the people know me here who don't know me. Let me introduce myself. I am Aska, and I'll be a co-moderator maybe in this event. For question answer session, a lot of very good energy I see, but a lot of questions are being answered as well in the speech or lecture, whatever sir is giving, right? So be focused and let sir complete a little of the lecture, and then we'll dive into the question answer session. Sir, there were a lot of generic questions. Let me filter them out for you, and then I'll be asking you the questions. Till then, you can please continue, and let's give another 5 minutes, and then go for QA section. What do you say? ऐसे करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी पहले ही पूछे ना नूर फातिमा ने, मेरे ख्याल में वो भी आंसर हो जाएंगे मेरे अगली 3-4 स्लाइड्स में. इफ यू कैन गिव मी 10 minutes तो फिर हम वापस आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर पे. ठीक है जी सर. चले. अच्छा जी, तो अब मैं ना फ्लो की बात कर रहा था कि लेट मी टेक स्टेप बैक. तो हमने वो पूरा प्लान किया, हमने कहा जी 25 स्प्रिंट्स लगेंगी, 1 साल लगेगा. तो फर्ज करें हम स्प्रिंट नंबर 3 पे थे. तो स्प्रिंट नंबर 3 पे टीम आई, टीम ने पूछा प्रोडक्ट ओनर से कि भाई ये बताएं कि हम अब अगली स्प्रिंट नंबर 4 पे क्या काम करें. तो स्प्रिंट नंबर 4 के लिए उन्होंने कहा ये जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, जो प्रोडक्ट बैकलॉग है, इसमें ये वाले ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं. वी वांट यू टू पिक दोज ट्रेडिंग पार्टनर्स and work on them and migrate them from the legacy system to the new modern iPaaS system. ठीक है जी. तो हम लेट्स से फ्राइडे को, जनरली मैं पिछली स्प्रिंट के थर्सडे को, ये सेकंड लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस स्प्रिंट को, हम बैठ के अगली स्प्रिंट के लिए प्लान कर लेते थे. उसकी रीजन क्या थी कि मैं चाहता था कि जो स्प्रिंट की स्टार्ट है ना, सुबह सुबह उनको पता हो कि हम ऑलरेडी उनको उनकी स्प्रिंट लोडेड हो. और लोडेड क्या 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 मतलब है कि जैसे बताया ना कि एक बंदे के पास 10 स्टोरी पॉइंट्स की कैपेसिटी है और मेरे पास 5 लोग हैं, तो 50 स्टोरी पॉइंट्स. तो मैं उनको वेडनेसडे थर्सडे ऑफ द प्रीवियस वीक ऑफ द प्रीवियस स्प्रिंट मैं उनको कहता था कि यू मस्ट लोड इक्विवेलेंट टू 10 स्टोरी पॉइंट्स फॉर ईच डेवलपर. तो 9 या 10, राइट, इवन 8 विल आल्सो वर्क फॉर गिवन पर्सन, ताकि वो जो है वो स्प्रिंट लोडेड हो जाए. तो अब वो इस टीम का काम है कि वो अपने हिसाब से, क्योंकि कुछ लोगों ने कभी कहीं जाना है, कोई अपॉइंटमेंट है या कुछ सिक लीव है या कुछ है, तो अकॉर्डिंगली 8 या 9 या 10 स्टोरी पॉइंट्स दे पिक with the collaboration of the team, the development team with product owner and the scrum master. तो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में ये तीनों रोल्स जो हैं डिस्कशंस कर रहे हैं और स्प्रिंट को लोड कर रहे हैं फॉर दी मंडे मॉर्निंग स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट स्प्रिंट, राइट? अच्छा, वो जब लोड हो गया तो स्प्रिंट बैकलॉग में आ गया. ठीक है जी.
तो मास्टर उसमें प्रोडक्ट ओनर की जो प्रोडक्ट बैकलॉग है उससे स्प्रिंट बैकलॉग में वो वाली चीजें आ गई जो अगले 2 हफ्तों में टीम ने अब रन करना है, उसको डिलीवर करना है, राइट। तो ये अब यहाँ पे जेनेरिक मैंने जैसे बताया कि कुछ लोग 1 वीक की स्प्रिंट भी करते हैं, 2 की करते हैं, 3 की करते हैं, 4 की करते हैं, लेकिन हम लोग 2 वीक्स की स्प्रिंट कर रहे थे। अच्छा, अब जो है हर रोज टीम मिल रही है, डेली स्टैंड अप्स हो रहे हैं, उसमें क्या डिस्कशन हो रही है? वेरी ब्रीफ डिस्कशन। What did you accomplish yesterday? What are you planning to accomplish today? And what are your hurdles? ये स्क्रम मास्टर के स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं टीम के साथ, और टीम जो है उन क्वेश्चंस को आंसर करती है। उससे स्क्रम मास्टर को पता चलता है कि ब्लॉक्स की तरह, हर्डल्स की तरह, ऑब्स्टिकल्स क्या है, और फिर वो ऑफ द मीटिंग ही और शी वर्क्स विद द टीम टू मेक श्योर कि वो हर्डल्स रिमूव हो जाएं। अच्छा, एट द एंड ऑफ द 2 वीक्स जो है टीम, जो डेवलपमेंट टीम है, वो प्रोडक्ट ओनर को दिखाती है कि हमने किया क्या, कौन सा तीर मारा है 2 हफ्तों में, वो उसको डेमो करती है, राइट। तो ये स्प्रिंट रिव्यू हो गया। और जो है स्प्रिंट रेट्रो क्या होता है? रेट्रो का मतलब है कि आप मुड़ के देखते हैं कि यार ये 2 हफ्ते हम भागे, कितना अच्छा भागे, डिड वी डू गुड जॉब और डिड वी नॉट डू गुड जॉब। तो ये एक डिस्कशन जो है रेट्रो में होती है, ठीक है। तो मैंने प्लानिंग का भी बताया आपको कि प्लानिंग जो है वो अगले स्प्रिंट के स्टार्ट के लिए कि वो उसमें क्या होगा, वो डिस्कशन हो रही होती है। स्प्रिंट रिव्यू में एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट डेमो हम दिखाते हैं प्रोडक्ट ओनर को, प्रोडक्ट ओनर से हम थम्स अप लेते हैं, और बेस्ड ऑन द वर्क दैट वी अकम्प्लिश इन अ गिवन स्प्रिंट, स्प्रिंट रिव्यू में डेमो दे के प्रोडक्ट ओनर के मे चेंज द प्रोडक्ट बैकलॉग अ लिटिल बिट, ठीक है जी। क्यों? हो सकता है कि कुछ चीजें उसको जहन में आए कि अब ये किसी का क्वेश्चन था जिसको मैं अब आंसर करने लगा हूं कि चेंज कैसे हम करेंगे, राइट, पिवट कैसे करेंगे। अब मैंने स्प्रिंट डन की, स्प्रिंट नंबर लेट्स से 7, अब स्प्रिंट नंबर 8 ने स्टार्ट होना था अगले दिन, अगले मंडे को, लेकिन प्रोडक्ट ओनर को किसी ने बताया, सीनियर लीडरशिप ने, कि भाई हमें तो ये एक डेडलाइन आ रही है, हमें तो कॉन्फ्रेंस में ये चीज प्रेजेंट करनी है, या ये क्लाइंट ने ये कह दिया, उसको फौरन ये चाहिए। तो आप अगली जो 3-4 स्प्रिंट्स है ना, उनमें अपनी जो प्रोडक्ट बैकलॉग है उसको थोड़ा सा चेंज करें। वी मस्ट मीट द डेडलाइन दैट आवर लीडरशिप इज गिविंग। तो स्प्रिंट रिव्यू के बाद जो देखने के बाद क्या बना है और क्लाइंट्स या लीडरशिप से प्रोडक्ट ओनर को क्या मिला है, वो अगली स्प्रिंट के लिए कह सकते हैं कि भाई देखो, हमने ये 4 चीजें तो कर दी, लेकिन 5वीं पे रुक जाओ, क्योंकि हमें 2 चीजें और आ गई हैं which we need to focus on. Let's work on those 2 things before we resume the work on the 6th or 7th thing, right? तो इस तरह you're adapting to the change, right? लेकिन जब आप एक स्प्रिंट के लिए 2 वीक्स के लिए वर्क लोड सेट कर लें, तो इट शुड बी रेयर एक्सेप्शन कि आप उसको चेंज कर रहे हैं। 2 वीक्स आपने भागने विद द बैकलॉग जो आपको प्रोडक्ट ओनर ने दे दी है, लेकिन 2 वीक्स के बाद there is a flexibility in according to Scrum or Agile best practices कि 2 वीक्स को आप टच नहीं करें, उनको सॉलिड रहने दें, फर्म रहने दें। लेकिन वर्स्ट केस के सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि somebody from the senior leadership can say कि नहीं नहीं we must change, तो then yes we can, लेकिन generally we should not। तो स्प्रिंट बाय स्प्रिंट आप चल रहे हैं, और हर स्प्रिंट में हर 2 वीक्स के बाद आप देख रहे हैं कि अब मैंने अगला काम क्या करना है। तो वो जो अगला काम है, वहां पे प्रोडक्ट ओनर के पास काफी वो फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे आती है कि वो उसके पास एम्पावरमेंट होती है टू पिवट, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द टीम, कि अब इसकी एक्स की बजाय वाई डिलीवर होगा या वाई पे काम होगा, ठीक है जी। अच्छा, ये रोल्स की मैंने बात कर दी, सेरेमनीज की मैंने बात की। अच्छा, ये जो है ना सेरेमनीज, ये सारी की जरूरी नहीं कि सारी की सारी हो, डेली स्क्रम जरूर हो, स्प्रिंट प्लानिंग जरूर हो। अगेन दीज आर माय पर्सनल एक्सपीरियंशियल बेस्ट प्रैक्टिस। स्प्रिंट रिव्यू जरूर हो। स्प्रिंट रेट्रो जो है वो मैं क्या करता था कि नॉट एवरी स्प्रिंट, उसको मैं एवरी लाइक 2 और 3 स्प्रिंट्स के बाद जो है रेट्रो, कि भाई अब हमने 1 महीना काम किया है, कैसा रहा यार काम, लेट्स टॉक, लेट्स आस्क प्रोडक्ट ओनर, लेट्स आस्क स्क्रम मास्टर। तो उसमें उनकी फीडबैक से, और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स भी उसमें आते थे कि सीनियर लीडरशिप आई, उन्होंने कहा जी हमने तो स्प्रिंट्स रन की हैं, 1 महीना काम किया, हमने ये डिलीवर किया है, व्हाट डू यू थिंक, कैसी क्वालिटी थी, क्या था, कोई कंसर्न, ये वो, तो वो रेट्रो में हो जाते हैं। और अगर आपने 1.5 महीने बाद भी करना, दैट्स फाइन, बट इट्स अगेन बेस्ड ऑन योर ओन थिंग। अच्छा, बैकलॉग रिफाइनमेंट जो है ये बड़ी अहम चीज है। ये क्या चीज है? ये बेसिकली
आप अभी काम कर रहे हैं इस स्प्रिंट में और आपने अगली 1-2 स्प्रिंट्स के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि आगे क्या होना है, राइट? तो उन स्टोरीज को जो अगली 1 या 2 स्प्रिंट्स में जो स्प्रिंट लोड होगी या उनके लिए प्लान होंगी, ये काम होगा जिन पे अगली 1 या 2 या 3 स्प्रिंट, उनके लिए अभी से 7 पैरेलल आप जो है उन पे भी काम शुरू कर दें, उनको भी रिफाइन करना, उन स्टोरीज पे भी थोड़ा सा आइडिया लेना शुरू करें, ये स्टोरी की डिटेल क्या है, इसकी एक्सेप्टेंस क्या होगी, इसकी साइजिंग क्या होगी, इसका स्टोरी पॉइंट्स कितने होंगे, राइट? तो दोज आर द थिंग्स जो है वो रिफाइनमेंट में साथ साथ डिस्कस, और दे आर एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फायदा क्या है कि यू आर जस्ट इन टाइम, आप जो है बहुत लंबी प्लानिंग नहीं कर रहे, आप अगली 1-2 स्प्रिंट्स की या 3 स्प्रिंट्स की साथ साथ प्लानिंग की 3-4 घंटे हर 2 वीक्स में आप सेट असाइड कर दें, आपका प्रोडक्ट ओनर, आपका स्क्रम मास्टर, डेवलपमेंट टीम बैठे और अगले 2-3 स्प्रिंट्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें, ठीक है जी? तो दिस इज हाउ यू आर लाइक जस्ट इन टाइम, यू नॉट वेरी वेरी डिटेल इन एस्टिमेशन, क्योंकि एस्टिमेशन जो हैं वो अक्सर गलत साबित होते हैं, चाहे जितना मर्जी अच्छा कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में आती हैं जिन जो नॉट इजी टू कीप ट्रैक ऑफ। अच्छा जी, अब ये मैं I'll just show you these slides. I won't go into a lot of details because a lot of text is here. But I wanted to show you so that कल आप अगर आप रिकॉर्डिंग देखना चाहें कल परसों तरसों, तो आप आके इन स्लाइड्स को देख के यू कैन सी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, और एक्चुअली बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑलरेडी मैंने वर्बलाइज कर दी हैं। ये बैकलॉग रिफाइनमेंट है, ये स्प्रिंट प्लानिंग है, ये डेली स्टैंड अप्स हैं, ये स्प्रिंट रिव्यू की है, ये स्प्रिंट रेट्रो की है। अच्छा अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि अब यहाँ पे फनी स्टोरी है। फनी स्टोरी ये है कि कुछ मेरी टीम्स थी, मैं उनको कहता कि काम हो गया, जी सर काम हो गया, डन डन डन। अच्छा जी, डन क्या चीज डन? व्हाट इज द डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डन? तो वो चीज स्क्रम मास्टर का काम है कि पहले दिन से प्रोजेक्ट के very clearly articulate करे कि done means what, when the developer comes back and says yes sir it is done, what does done really mean? तो उसको आप सही तरीके से डॉक्यूमेंट करें। these are just few best practices कि डन का क्या मतलब हो सकता है, राइट? यूनिट टेस्ट हो गया, कोड रिव्यू हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मीट हो गई हैं, प्रोडक्ट ओनर ने थम्स अप दे दिया है, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में रिग्रेशन टेस्ट सही चल गए थे, एंड ऑटोमेट द रिग्रेशन बिकॉज दैट विल fasten your time to complete the work, right? और ये मेक श्योर करेगा कि आपका पिछला काम जो है खराब नहीं हुआ, और जो भी यूएटी तक पहुंचाना था या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट तक पहुंचाना था वहां पे ये कोड पहुंच गया। तो ये डेफिनेशन ऑफ डन, दैट्स वन एग्जांपल। अच्छा, स्टोरी पे मैं बात करता चलूं क्योंकि आई नो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई नीड टू आंसर। तो स्टोरी क्या चीज है? स्टोरी है कि आपने करना क्या था, राइट? स्टोरी इज अ टर्म इन एजाइल मेथोडोलॉजी टू टेल द डेवलपमेंट टीम व्हाट टू वर्क ऑन। तो उसकी एक टेम्पलेट जो है बड़ा स्टैंडर्ड था कि एज अ type of user I want to accomplish this so that such and such thing can happen. जैसे ये example, as a trainer I want my profile to list my upcoming classes and include a link to a detailed page about each so that prospective attendees can find my courses. तो अब ये स्टोरी जब आएगी डेवलपमेंट टीम के पास तो उनको आइडिया होगा कि ये गोल क्या है स्टोरी का, राइट? और ये इसकी रीजन क्या थी, क्यों ये जो है ना ये यूजर ये क्यों चाह रहा था। तो यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट होगी, ये बड़ा ब्रीफ डॉक्यूमेंटेशन होगी इन जीरा और असाना व्हाटएवर। और जो डेवलपमेंट टीम है जब स्प्रिंट ग्रूमिंग कर रहे हैं तो वो इस स्टोरी पे फिर क्वेश्चंस पूछेंगे, ये कैसे होगा, क्या है वायर फ्रेम, ये वो बहुत सारी डिस्कशंस ग्रूमिंग में हो रही होंगी। बाय द टाइम स्प्रिंट शुरू होगी तो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा कि अच्छा इसका वायर फ्रेम क्या है, इसका फ्लो क्या है, इसके यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट क्या है, प्रोडक्ट ओनर कब कैसे इसको एक्सेप्ट करेगा, क्या क्या करूं कि वो एक्सेप्ट हो जाए, इस तरह की चीज़ें स्टोरी के अंदर in addition to this text they will be adding as part of the grooming. अच्छा, ये फिर कुछ टिप्स हैं कि जब आप स्टोरी बैकलॉग ग्रूमिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि ओनली सर्टेन स्टोरीज आर द फोकस,
और फिर वो सारे लोग जिनको स्टोरी का पता है, स्पेशली द यूजर हु, अगर प्रोडक्ट ओनर को नहीं पता, प्रोडक्ट ओनर शुड ब्रिंग दोस यूजर्स इनटू द डिस्कशन टू हेल्प क्लैरिफाई ऑल द क्वेश्चंस के फ्लो क्या है, कैसे होगा, यूआई कैसे लगेगी, रूल्स क्या होंगे, बिजनेस रूल्स क्या हैं, ऑल दैट गुड स्टफ, राइट। और स्टोरीज का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इस पे बात हो, और डिटेल्स जितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, नॉट वर्बोस, कोई 40,000 की लाइन वो नहीं लिखने, हमने पेजेस नहीं लिखने, राइट। हमने जस्ट इनफ, जस्ट इन टाइम इंफॉर्मेशन स्टोरी के अंदर जानी चाहिए, जो कि शुड बी गुड इनफ फॉर द डेवलपर टू अंडरस्टैंड कि मैंने बनाना क्या है, ठीक है जी। अच्छा, लेट मी टेक अ पास हियर जी, एंड देन विल टॉक अबाउट लास्ट फ्यू स्लाइड्स आफ्टर दैट। जी अस्का, प्लीज गो अहेड। Gee, sir. Actually, I'm still filtering out the questions. A lot of questions, and एक दो मेरे ख्याल में क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन जो नॉन थियरी है ना, वो पूछिए, ताकि थियरी वाले तो बच्चे दे कैन सर्च ऑन कहीं चैट से भी मिल जीपीटी, जाएंगे। गूगल। यस सर, एक क्वेश्चन है नयाब करीम का कि हाउ डू वी डील विद स्कोर क्रीप अनकंट्रोल्ड चेंजेस। अच्छा, एजाइल में ना स्कोप क्रीप कोई चीज नहीं है। अब ये काफी मैंने इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दे दी। कैसे? अच्छा। कैसे कि एक्सक्यूज वन सेकेंड, होता क्या है कि एजाइल में आप, जैसे मैंने कहा ना कि आप तीसरी स्प्रिंट पे या चौथी स्प्रिंट पे हैं, तो अब नया काम आ गया, ठीक है जी। अब जो है वो ये प्रोजेक्ट जो एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजर है या स्क्रम मास्टर है या जो भी एजाइल लीडर है, उसका काम है टू रिस्पॉन्ड टू द चेंज। अगर लीडरशिप से चेंज आ गई है तो टू रिस्पॉन्ड टू द चेंज, लेकिन देयर शुड बी सम मेथड टू टू दिस क्रेजीनेस। कैसे इसको हैंडल करना है? तो एजाइल क्या करता है कि आप जब पिवट करते हैं, जब आप चेंज करते हैं अपना डायरेक्शन, तो आप फिर उसको एस्टिमेट करते हैं कि अच्छा अब जो है ना ये 4 चीजें और आ गई हैं, अब 6 की बजाय 8 स्प्रिंट्स लगेंगी। So you keep on telling, as you are keep on doing things, executing your work, development is going on, you are also keep on informing with the updated information about kitni sprints burn, isko burn down burn up charts कहते हैं, कि हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी हमें 25 स्प्रिंट्स चाहिए, लेकिन आपने ये 6 चीजें नहीं डाल दी हैं जनाब। तो अब क्या होगा कि अब 25 की बजाय अब हमें 31 चाहिए। तो टाइम का भी आप बताएंगे और कास्ट का भी। यू कीप ऑन अपडेटिंग दोज एस्टिमेट्स एंड कीप ऑन इन्फॉर्मिंग योर लीडरशिप, की कोई सरप्राइज नहीं रहे। So that is the goal of the Scrum Master, to give the information to product owner in form of these burn up charts एंड अपडेटेड एस्टिमेट्स, ताकि कोई भी जो है स्टेक होल्डर कौन होता है, जिसको भी कोई इंपॉर्टेंट उसका लिंक है इस प्रोजेक्ट के साथ, उसको कोई सरप्राइज ना मिले कि ओ यार ये तो मैं $1 लाख तुमने कहा था, अब तुमने इसको 1.5 लाख बना दिया, कब बनाया ये, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो दैट शुड नेवर हैपन। जी अस्का। राइट सर। सर एक क्वेश्चन है शिफा शहबाज का कि जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी किसी भी मॉडल के थ्रू डेवलप हो गए हैं, उसको हम एजाइल पे शिफ्ट कर सकते हैं? मतलब उसके क्या कोई रिस्क्स होते हैं या कभी भी कहीं पे भी हम एजाइल लेके आ सकते हैं? बिल्कुल, एजाइल किसी टाइम में भी किया जा सकता है। आपने बस वो जो एजाइल माइंडसेट है, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो मेथोडोलॉजी है, सेरेमनीज हैं, उनको उस प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट कर देना है। और आपने मेक श्योर करना है कि जब आप वो हैंड ऑफ होने लगे, जो भी उस ट्रेडिशनल तरीके से चल रहा था, आप थोड़ी सी उसकी ट्रेनिंग करें, लोगों को कोच करें, एजुकेट करें, मेक श्योर के पीपल बाय इन, दे अंडरस्टैंड कि पहले क्या हो रहा था और अब क्या होने लगे है, और अब जो एजाइल अप्रोच है उसमें इसका एसेंस क्या है और उसमें एक्सपेक्टेशंस क्या है, जैसे मैंने वो दिखाई ना, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज राइट क्या हैं। तो once you clarify these things, once you educate people, it will become easy. And that's why Scrum Master or Agile team must be like more like a change agent. They should be, so change agent works with the people whom he's going to or she's going to change, and explains them, educates them, trains them, coaches them, and then takes them to the change. राइट सर। अच्छा सर, हमारे माशाल्लाह जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो थोड़े दूर अंदेश भी हैं। तो एक जुनैरा आसिफ है, वो पूछ रही हैं कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं या सर्टिफिकेशंस होती हैं हमारी एजाइल
के स्किल्स हासिल करने के लिए, तो वो उसकी तरफ अगर आप थोड़ा कुछ गाइड करें कि फ्यूचर क्या है हमारा एजाइल में, जी जी फ्यूचर। अच्छा, एक चीज मैं बताता चलूं इस सवाल के जवाब से पहले। मेरी रिक्वेस्ट ये है, मुझे यस कहीं मुझे कह रही थी कि जितना मेरा एक्सपीरियंस उतने शायद बहुत सारे लोग उनकी एज ना हो, 25+ ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिमेन टेक्निकल। ये डोंट कॉप आउट, डोंट फाइंड इजी वे आउट कि अच्छा जी मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाऊं पहले दिन ही और मुझे जो है ना प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी, ये है वो। प्लीज स्टे टेक्निकल। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एंड आई एम गिविंग माय ओन एग्जांपल बिकॉज नॉट टू बोस्ट बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। अभी मेरे क्लाइंट है, उसको यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में उनको एक ना, oh no, this one is actually a private company। तो उनको उस लास्ट वीक उसने कहा जी कि मुझे मेरा जो है ना एक प्रोजेक्ट है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन सारे एआई बेस्ड हैं, और मैं अमेज़न का एआई एजेंट्स यूज़ करना चाहता हूँ। अब जनाब कॉल पे मैं उसको सुन रहा हूँ, बेडरॉक, AWS बेडरॉक अगर आप सर्च करें तो उसमें एआई एजेंट्स हैं, नॉलेज बेस है, रैग है, ये वो है। अब मुझे कुछ आइडिया तो था, तो मुझे कहता है कि लेट्स मीट इन 2 days एंड डिस्कस अबाउट इट। मैंने 2 रातें लगाई और मैंने सारी वीडियोस जो मैं समझ सकता था ना कि ये होता क्या है, ये बेडरॉक काम कैसे करता है, एजेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, नॉलेज बेस में रैग के लिए आप कैसे कर सकते हैं, वो सारा मैंने समझ लिया ताकि मैं 2 दिन के बाद जब मीट करूं तो आई एम रेडी टू हेल्प हिम आल्सो टू अंडरस्टैंड कि उसकी नीड क्या है। ठीक है, याद रखिए कि बहुत सारे लोग जो नॉन टेक्निकल होते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को समझना और उसको सही तरीके से समझना। जैसे वो जोक है ना, वो एक बंदा कॉल करता है हेल्प डेस्क पे, कहता है मैं मुझे ये मसला है, कहता है प्रेस एनी की, वो सब अपने कीबोर्ड पे देखो, इस पे तो कोई एनी के नाम से कोई की है ही नहीं। तो so so lot of things that you think are easy straightforward for others may not be, but coming back to this point, keep remain technical, don't cop out please. Or technical, you don't have to actually go into the writing nth to the nth degree to write the code, but you should be able to have very clear understand। अच्छा, मेरा लकीली चूंकि मैंने 10 साल हैंड हार्ड कोड प्रोग्रामिंग की हुई है, तो इस वजह से मुझे कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं आती है तो मुझे जल्दी टाइम में समझ आ जाती है। लेकिन वो 10 साल जो हैं वो उसका फायदा हुआ हमेशा सारी जिंदगी, राइट। तो मेरी इसलिए रिक्वेस्ट होगी सबसे, गर्ल्स स्पेशली, आई सी लॉट ऑफ गर्ल्स, और मेरी 2 बेटियां, तो आई टेल देम एज वेल एंड दे डोंट लाइक इट बट आई कीप ऑन रिमाइंडिंग देम कि प्लीज लर्न हाउ टू कोड। ठीक है, मेरी जो बड़ी वाली बेटी है, शी एक्चुअली डिड नॉट लाइक टू कोड बट इवेंचुअली लिसन टू हर डैड, और माशाल्लाह उसको नासा में एज अ रिसर्च इंटर्न अपॉर्चुनिटी मिली 2 years ago। और उस दिन से जो है ना मेरी बातें जरा ज्यादा मानती है। तो सो व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस टू मोटिवेट ऑल ऑफ यू गर्ल्स कि गर्ल्स कैन डू एन अमेजिंग जॉब। आप लोगों के पास बड़ा ऑर्गेनाइज माशाल्लाह अल्लाह ने आपको पहले से जेन दिया हुआ है। लॉजिक is not very difficult, just learn the logic, learn some tools, don't get scared from the tools। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कुछ कमाल नहीं है। अभी आपको पता है ना ओपन एआई की जो CIO की CTO है, शी इज अ गर्ल, जो इतनी बड़ी $multi-billion की कंपनी है। एनीवे बैक टू उसका, सॉरी सम टेंजेंट। नहीं सर, मुझे मजा आ रहा था गर्ल्स की तारीफें सुन के। तो आई मीन बॉयज आर अमेजिंग टू, ओके, मैं भी सर, यू मेल हैव अ हूँ। लॉट ऑफ गर्ल्स इन द सेशन, तो लेट्स नॉट गेट इनटू द डिबेट। हार जाएंगे आप। हाँ अच्छा सर, एक क्वेश्चन है एआई से रिलेटेड है कि मतलब एआई और एजाइल का क्या आगे फ्यूचर निकल रहा है, मतलब एआई इनकॉर्पोरेट कैसे हो रही है एजाइल में। अच्छा, अब क्या है कि अगर तो मॉडल रिसर्च लेवल पे बात चली जाए तो थोड़ा एज आई वाज सेइंग कि उसको कैनबैन स्टाइल पे लेके जाया जा सकता है या उसका बिल्कुल डिफरेंट ट्रेडिशनल स्टाइल पे जाया जा सकता है। लेकिन अब चूंकि बहुत सारी चीज़ें वो सिस्टमाइज तरीके से हो रही है, जैसे अमेजोन का ये बेडरॉक का कॉन्सेप्ट है, या एआई एजेंट्स का कॉन्सेप्ट है, या GCP भी इस तरह की चीज़ें दे रहा है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, राइट। Azure भी दे रहा है कि they are creating structure around AI models. So there are a lot of out of the box models pre-trained, or you need a little bit of training and they're ready to go। तो बहुत सारा टाइम जो है आपका सिमट गया है टू
कमोडिटी बनती जा रही है मॉडल्स जो हैं, राइट? सो इट इज इजी टू एस्टिमेट कि ये मॉडल के साथ जब काम करना है तो कितनी देर लगेगी। तो सो यू कैन नाउ इजीली estimate things and do things AI related in using agile methodologies. राइट सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, आई गेस लाइबा ने क्वेश्चन किया है, तो उसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगी। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से सर, डॉक्यूमेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी एजाइल में? फॉर एग्जांपल मतलब एजाइल में वी हैव अ रैपिड डेवलपमेंट, राइट? तो उस रैपिड डेवलपमेंट में कोई अगर जैसे कोई डेवलपर है दैट इज ऑफ फॉर सम रीजंस, कोई इमरजेंसी हो जाती है, लीव्स पे निकल जाते हैं, तो मतलब उस सिनेरियो में हमारे पास बैकअप क्या होता है? हमारी तो वैसे ही टीम्स छोटी छोटी होती हैं स्प्रिंट्स वगैरह में, तो हाउ डू वी डील विद सच अच्छा, सिचुएशन? तो ये किसी ने पूछा ट्रेलो, हाँ ट्रेलो, monday.com, asana, blah blah, I mean there are like so many tools. Just understand the methodology, the essence of it, the theory of it. कोई भी टूल यूज कर लें, ऑल गुड। किसी ने सवाल पूछा कि जी स्क्रम के अलावा क्या यूज हो रहा है, तो सेफ जो है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एंटरप्राइज बड़ी बड़ी, आई मीन आई वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट वेयर 500 people were working, right? So they were using safe scale agile framework, right? तो उसमें क्या, वो मल्टीपल स्क्रम टीम्स हैं, और एक बिजनेस यूनिट की अपनी रिलीज ट्रेन है, दूसरे बिजनेस यूनिट की अपनी ट्रेन, तो देयर वर लाइक 3 रिलीज trains were going, और वो like lot of people working together to take that company to the modern system that they were working on. तो अच्छा, बैक टू डॉक्यूमेंटेशन, नस्का का जो क्वेश्चन है, देखें डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट द गोल। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि रिमाइंडर सबके लिए, ऑलवेज रिमेंबर द एंड गोल। एंड गोल आपका सॉफ्टवेयर है, आपका कोड है, राइट? वो कोड सही लिखा होना चाहिए, उसमें अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि अगर कल को कोई बंदा उसको पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ भी सके। आप खुद अगर 2 महीने बाद अपना कोड ही पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि अच्छा यार, ये मैंने ये वाला फंक्शन क्यों लिखा, ये वाला मेथड क्यों कॉल किया। कई दफ़ा ये भी हुआ है कि वो, आई मीन आई हैव बीन ब्लेस्ड टू मैनेज लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब। और कभी कभी वो कोड खुलवा के पूछा, यार ये तुमने क्या किया? सर एक सेकंड ठहरे, मुझे तो खुद भी याद नहीं रहा कि मैंने ये क्यों लिखा था। तो सर इसमें डोंट मैं डू ऐड दैट। ऑन करूंगी। एक दफा मैं अपना कोड देखी थी एंड आई वाज लाइक यार ये किसने कोड लिखा है इतना गंदा, तो जब आगे वो देखा तो आगे वो मेरा ही नाम लिखा हुआ था। तो इट एक्चुअली हैपेंस के याद भी नहीं रहता कि बंदे ने कोड क्या किया हुआ है। जी, तो इन गुड डॉक्यूमेंटेशन इन कोड and enough documentation outside of the code for the developer to be able to write the code. That's the rule. जी, next question. अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि कैसे पता लगेगा सर एजाइल की कौन सी मेथोडोलॉजी सूटेबल है ये हमारे हाँ, मैंने प्रोजेक्ट? आंसर कर दिया। तो अच्छा ये कर लिया, people, राइट। हाँ अच्छा, सॉरी इफ आई एम रिपीटिंग। हाउ एजाइल टीम्स इंश्योर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड लर्निंग? वो तो हमारी स्प्रिंट स्टैंड अप से भी हो रही होती है, रेट्रोस्पेक्टिव से भी हो रही होती है, आई गेस। राइट राइट। अच्छा, इसका मुझे ऐसा लगता है ये हमें ना एक सेशन और करना चाहिए नेक्स्ट वीक में। ये तो फिर वी कैन हैव आस्क द एक्सपर्ट सेशन जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस लें, मतलब हाँ, ताकि वी जिसमें कैन। क्योंकि थियरी शेरी तो हो गई है, अगर किसी ने पूछा भी तो हम कहेंगे रिकॉर्डिंग देख लें। लेकिन मेरे हम्म। ख्याल में लेट्स स्पेंड 4 more minutes, क्योंकि काफ़ी सारा हमने टाइम आज अपने ऑडियंस से ले लिया, और आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू देम कि अभी भी हमारे पास काफ़ी सारे लोग कॉल पे हैं। तो लेट्स स्पेंड 4 more minutes, और फिर हम एक और एज एक्सपर्ट 1 hour डेडिकेटेड सेशन हम कर लेते हैं। अच्छा, एक सेकंड, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा किसी ने पूछा, व्हाट स्किल्स आर एसेंशियल फॉर एजाइल टीम मेंबर्स? हाजरा ने पूछा है। तो हाजरा और बाकी 100 जितने भी 10 20 जितनी भी गर्ल्स हैं, स्पेशली गर्ल्स आई एम सेइंग, क्योंकि मुझे पता है कि गर्ल्स फील लाइक कि अच्छा पता नहीं टेक्नोलॉजी कितनी मुश्किल है। यार नहीं मुश्किल, ये आप बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप इतनी आसान हो गई है, चैट जीपीटी पे हल्का सा वो डालो ना कि दिस इज माय सिनेरियो, राइट द कोड इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में लिख देगा, पाइथन में लिख देगा, पाइथन के कोड को जावास्क्रिप्ट में चेंज कर देगा। देयर सो मेनी टूल्स अवेलेबल। यू मस्ट हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉजिक। एक टूल ले लें, उसको पहले सीख लें, फिर कोई भी टूल में मैंने अपनी जिंदगी में सबसे पहला टूल जो सीखा था वो था कोबॉल। कोबॉल जो है बता पुराना, तो पैस्कल और कोबॉल। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई लर्न द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड दैट हेल्प मी टू व्हेन जावा केम इन 1995-96, so I could be able to switch very quickly, just a few weeks and I was in Java, right? And similarly I have worked in other tools and technologies and other programming language, and it takes me just few days sometimes to switch to another programming language. So
कॉन्स्ट्रक्ट समझ लें, फॉर लूप, ये इफ देन एल्स, ये कॉन्स्ट्रक्ट्स कैसे होते हैं, लॉजिक कैसे लिखी जाती है, टेक सम गुड कोर्सेज ऑन हाउ टू राइट द लॉजिक। जब तक आप करेंगी नहीं आपको आएगा नहीं, जब तक आप हैंड्स ऑन द कीबोर्ड नहीं होंगे यू विल नेवर लर्न। सो बिल्ड समथिंग, बिल्ड सम कैलकुलेटर, पेंट, ये जो बेसिक बेसिक चीज, कोई 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 चीज बना दें, कुछ भी बना दें, लेकिन बनाएं जरूर। और वो अच्छा, आंसर क्वेश्चन ये था कि किस तरह की स्किल्स। अगेन आई विल से स्टे टेक्निकल, stay technical, don't cop out, don't find easy way out. Scrum master जो है वो लगता बड़ा easy है, but I would rather have a technical person become scrum master rather than a regular person who is not very technical and becomes a scrum master. जी अस्का। Right, sir. I guess that's all. Let's see if we have any critical questions. Which language is preferable in Agile? English language. देखिए देखिए, Agile तो methodology है ना, तो आपके प्रोजेक्ट हो सकता है पाइथन पे हो, आर पे हो, जावास्क्रिप्ट यूज हो रहा हो, नोड डॉट जेएस यूज हो रही, कुछ भी यूज हो रहा हो, जो जावा यूज हो रही हो, डॉट नेट यूज हो रही, कुछ भी यूज हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो भी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, उनको आप एक प्रॉपर तरीके से, ये जो हमने एजाइल अप्रोच स्क्रम की बात की, उसको यूज करते हुए हम सही तरीके से सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें। राइट सर। अच्छा अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड सर, मतलब एक क्वेश्चन ही है कि फॉर एग्जांपल एवरीवन इज नॉट बोर्न कोडर, तो कोडिंग साइड पे नहीं चला दिमाग, कोशिश के बावजूद भी नहीं चला, तो उसमें फिर हम अपने आप को कोडिंग की बेसिक्स की नो हाउ लेके किसी और साइड पे भी निकल सकते हैं, यस और नो? बहुत सारी साइडें हैं, ये सवाल मैं अपनी बेटियों को बता बता के थक गया हूँ। तो देखें, प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने बताया, स्क्रम मास्टर बताया, प्रोडक्ट ओनर बताया, बिजनेस एनालिस्ट बताया, नेटवर्किंग साइड पे नेटवर्क इंजीनियर आप बन सकती हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकती हैं। There are so many roles that don't require hardcore development experience or coding thing. You must have technical know-how, you must have technical technology understanding, you must not get afraid of technology कि ओ यार है कि तो ये तो बहुत मुश्किल है, right? Don't do that. कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, where there is a will there is a way, right? So आप लोग यार, मुझे तो अब लगता है कि सारी दुनिया में प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर शायद आइंदा दिनों में लड़की ही बनेगी। नो ऑफेंस टू द बॉयज जो थोड़े से हैं कॉल पे, लेकिन गर्ल्स आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, दे कैन conquer anything, so please don't enjoy learning new technologies. राइट राइट सर। आई होप सर सेशन को इसको आगे लेके चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, एंड लेट्स एंड द सेशन नाउ भी, ऑब्वियसली आपका भी टाइम कंस्ट्रेंट होगा, और लेट्स कीप द थर्स्ट हियर, एंड लेट्स गो फॉर सेकंड सेशन। वो हम लोग बाद में आपकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली अनाउंस कर लेंगे, एंड आई होप दैट्स ऑल। एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर साइड सर? नहीं, बस thank you so much Mrs. Ka for bringing a lot of your students, और I appreciate everyone. माशाल्लाह हमारे पास attendance almost steady रही. This is a sign कि the attendance, the audience is engaged, alhamdulillah. So my one last reminder is देखें, इस वक्त जो है ना, जो करेंसी दुनिया में वो है टेक्नोलॉजी। जिसने टेक्नोलॉजी, जिस बंदे ने या जिस शख्स ने, जिस नेशन ने टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज कर लिया, they will be the leader. They will be the leader. They are the leader. We know the our neighboring country, and some of the other countries, and some countries also coming up from South America, right? And also Middle East is trying, Qatar, Dubai, and all that. तो पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, तो आप लोग, you're the youth, use technology, enjoy technology, learn technology, and make technology your friend, ताकि आप grow कर सकें, पाकिस्तान grow कर सके. So with that message, inshallah, I hope that you all will take some inspiration today. कि ऐसी थी तैसी टेक्नोलॉजी थी, असी नया, that's the approach I want all of you to take. इंशाल्लाह राइट सर। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड अगेन क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि अनआंसर्ड रह गए हैं,
we will inshallah have a session 2 for that. And still अगर आपको बहुत curiosity हो रही है कि यार अभी के अभी आंसर चाहिए या within coming days आंसर चाहिए, then you can have our community portal, उस पे जाके आप हाँ ask the experts में question करें, and our expert esteemed speaker will go and inshallah respond you there. थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि बहुत जेनेरिक क्वेश्चंस ना हो। जो चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं, अवेलेबल मिल रही हैं गूगल से या जेनेरिक बुक से मिल रही हैं, वो चीज़ें ना देखें। रादर देन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस पूछें जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हों और स्पीकर को अपना एक्सपीरियंस बताते हुए भी मज़ा आए। और अच्छा, आप बल्कि इस पे वो एक बना देना पोस्ट उसकी एजाइल मेथोडोलॉजीज की, तो उस पे लिंक शेयर कर दें, तो मैं एवरी अदर डे आई ट्राई टू बी देयर ऑन दैट स्पेस इंशाल्लाह। सर हमारी एक कोर्स मैंने जनरेट किया है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 101, ठीक है, आई इट विल बी कवर्ड इन दैट। ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ भी शेयर कर दें और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर दें, एंड देन इंशाल्लाह वो, सो यू कैन फाइंड दैट ऑन community.etlonline.org। राइट सर। चलें सर, थैंक यू सो मच, लेट मी हैव अ वर्ड विद माय क्लास नाउ। थैंक यू, चलें, थैंक यू, जज़ाकल्लाह फॉर ओके, योर टाइम सर। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सर। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, यू डोंट हैव द ऑप्शन फॉर दैट। एक सेकेंड, कैन वी enable the option to unmute, admin Saiba? Yes, ma'am. Wait a second. We can stop the recording till here ताकि सेशन में एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग ना जाए। अच्छा, people are joining at the moment as well. Just a second, guys. Can you unmute yourself now? Anyone? Yes, ma'am. Yes, चलो गुड यार। अच्छा जी, yes, ma'am. वेरी गुड।